Good afternoon. I am Dr. Neelam Banara, Senior Consultant, Kailash Hospital and Institute, Sector 71. Good afternoon, everyone. I am Dr. Megha Tiwari, obstetrician and gynecologist at Kailash Hospital, Noida, Sector 71. As we know, today's topic of MedTalk is infertility awareness, as we celebrate this month for infertility awareness. So, we have taken this opportunity to educate our viewers regarding this very dealing topic, considering our lifestyle changes, the stresses in life, and also the delayed age of conception than what it was for yesteryears. So before we go into the factors, the investigations, the evaluations of an infertile couple, I would like to just enlighten you that how do we define infertility? So if a couple has sexual intercourse for a period of 12 months regularly, it is seen that more than 80% of the couples conceive. And of the remaining, if they try for the next second year, it is more than half of the couples conceive. So the cumulative effect that we see after 2 years is more than 90%. So a couple has to give that time and that opportunity if they do not have any underlying factors to be able to conceive a healthy child. So the question comes, when do we start investigating a couple? So by this reference, if a couple is unable to conceive after a period of 12 years and the age of the women is less than 40 years, then we try to start investigating the couple as a whole. It's not the female alone. We also start investigating the male. So it has to be always an evaluation of the couple. Now, there are certain other situations where we want to do an early investigation and an early referral, which could be a woman who is is more than 36 years of age and is known to have certain risk factors for infertility, maybe an ovarian disease, maybe a uterine pathology or a tubal pathology, or they know that they have some underlying diseases like hypertension, diabetes, thyroid diseases, and various other medical disorders, have undergone a particular surgery referring to their reproductive organs, or they have an exposure to STIs or some chronic diseases like hepatitis, HIV, then the referral has to be started earlier. So having said about these limitations that we encounter, we grade the infertility as a primary or secondary. Primary infertility is infertility when we are talking in a couple which has not been able to conceive a single child, not able to bear a pregnancy, which may result in a live pregnancy or may result in an abortion. But this couple has not been able to bear a pregnancy. That is primary infertility. A secondary infertility is a couple who has had a live child or has an episode of abortion. Here we are not discussing about recurrent pregnancy losses, whether the couple has had several losses and not been able to have a healthy child. That is another purview, and we do not enlist them in the categories of infertility. We are just here trying to delineate two kinds of infertility, primary and secondary, because the approach, the investigation, and the evaluation and the treatment of both are different. With this brief introduction, we shall move forward to the factors that are affecting a couple who is trying to conceive. And here we have Dr. Neelam ma'am who shall enlighten us about that. Thank you, Megha. Factors, we come to the factors. The most important factors are number one is age. What is the age of the patient? What is about her sexual activity, and whether she smokes or whether she is alcoholic, and is there any other comorbidities like hypertension, diabetes, hypothyroidism, tuberculosis, or whether she is obese or low weight, very low weight. So first of all, we should come to the age. So age is a very important factor क्योंकि ऐसा शायद आप सभी जानते हैं जैसे जैसे एज एनहांस होती है इन मेल एंड फीमेल बोथ फर्टिलिटी कम होती जाती है उसका एक रीजन होता है आई विल टेल यू इन शॉर्ट जब एक लड़की पैदा होती है उस समय उसके मिलियंस ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं उसमें ओवरी में एंड जैसे ही उसका मिनार्की होता है मींस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी उसमें लैक्स में रह जाते हैं वो फॉलिकल्स एंड एवरी मंथ जब वो मेंस्ट्रुएट करती है तो एक एग रिलीज होता है लेकिन एक एग बनने के लिए पहले मल्टीपल फॉलिकल्स को मैच्योर होना पड़ता है उसके बाद ही वन मैच्योर एग रिलीज होता है तो एक एग रिलीज होता है इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हर मंथ में उसके काफी सारे एग्स यूज हो रहे हैं इसका मतलब है कि धीरे
धीरे जैसे जैसे वो फीमेल 32 ईयर्स से ऊपर होती है, उसका ओवेरियन रिजर्व थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। और इवन ओवेरियन रिजर्व कम होने के साथ साथ उसकी जो ओवा की क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी कम होने लगती है। इसलिए एज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन इन मेल्स ऑल्सो स्पर्म्स की क्वालिटी थोड़ी सी कम होने लगती है। हालांकि मेल्स में स्पर्म्स का रिलीज काफी बड़ी एज तक होता रहता है, बट स्पर्म्स की क्वालिटी कम हो जाती है। इसलिए एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा है आपका ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स कि अगर महिला, नॉट ओबेसिटी मीन्स वेदर शी इज लो वेट और अंडर वेट और ओवर वेट, तो हम लोग इसको देखते हैं कि अपना बीएमआई देखना चाहिए। बीएमआई शुड बी बिटवीन 20 to 25। अगर ये 20 से नीचे है, 29 से भी कम है, इसका मतलब है बहुत ही अंडर वेट है पेशेंट। तो पेशेंट को अंडर वेट भी नहीं होना चाहिए, उसमें भी उसकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो जाती हैं, स्कैंटी मेंसेस होने लगते हैं, इवन मेंसेस नहीं होता है और ओवरवेट है। इफ बीएमआई इज मोर देन 25, तो इसका मतलब उसको ओवरवेट है। अगर उसका 35 से भी ऊपर है अगर बीएमआई, तो मतलब है कि वो ओबीज है। तो एक ओबीज में भी सारे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं और शी मे नॉट हैव प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवुलेशन ना हो, और आपने सुना ही होगा पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है महिलाओं को। इसी तरह मेल में भी ओवरवेट एंड अंडरवेट दोनों में ही प्रॉब्लम्स होती है स्पर्म्स बनने में। तीसरी चीज होती है कि अल्कोहल एंड स्मोकिंग। स्मोकिंग एंड अल्कोहल बोथ आर हैजार्डस फॉर फर्टिलिटी। सो इस जो अल्कोहल लेते हैं या स्मोक करते हैं उनको भी इनफर्टिलिटी की शिकायत हो सकती है। चौथी चीज है कि महिला को कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, जैसे कि उसको डायबिटीज, क्रॉनिक केस ऑफ डायबिटीज, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, क्रॉनिक हाइपरथायराइडिज्म और ट्यूबरकुलोसिस, इन सभी में उसका फर्टिलिटी ऑल्टर हो सकती है। हाँ, now Megha, what about factors in weight? So, and we've taken this opportunity to educate our viewers in this way that every time we want to educate a couple, अगर हम एक couple को educate करना चाहते हैं, it has to be the male and female together. जब हम evaluation चालू करते हैं, एक couple का जो try कर रहे हैं conceive करने के लिए, तो every time we request that the couple should come together. मतलब husband और wife दोनों को आना चाहिए, because सिर्फ हमारे इन्वेस्टिगेशन से ही हर चीज इंफर नहीं हो सकती। लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड, हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, जब उनसे डिस्कशन करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी सेक्सुअल लाइफ एंड उनकी पास्ट हिस्ट्री, कोई सर्जिकल हिस्ट्री, कोई मेडिकल हिस्ट्री हो, उन सब की इवैल्यूएशन के बाद ही एंड अप एंड डिसाइड कि हाँ अब इस पेशेंट का क्या इन्वेस्टिगेशन करना है। सो हेंस वी स्टार्टेड, सो वी डिस्कस एंड वी स्टार्टेड कि हम इसको मेल और फीमेल इवैल्यूएशन में डिमार्केट करेंगे। तो पहले आते हैं मेल का इवैल्यूएशन। नाउ मेल जो है, वंस यू अप्रोच योर डॉक्टर, तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द हिस्ट्री टेकिंग, इन द सेंस कि अगर जो हस्बैंड है उनको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम तो नहीं है, टू स्टार्ट अ हेल्दी रिलेशनशिप विद द वाइफ और द पार्टनर। तो अगर वहां पर कोई हिकअप्स है या वहां पर कोई प्रॉब्लम है, सो द पेशेंट हैज टू बी इवैल्यूएटेड by the andronologist or the urologist to understand where is there an organic cause, yeah, it is some stress related disorder, or there is a difficulty in the couple to have a healthy sexual life. So that is about history taking, that is about the sexual part, where we have to educate the patient कि क्या और कैसे और क्या right timing है करने के लिए। Then comes to the personal history. Now personal history refers to also कि जब ये मेल पार्टनर यंग था, तो मतलब यंग चाइल्डहुड में कोई डिजीजेस हुई हो या कोई ट्रॉमा हुआ हो, डिजीजेस लाइक मम्स होते हैं, तो दैट आल्सो अफेक्ट दी ऑर्गाइटिस करा सकता है, तो अफेक्ट द टेस्टिस। सो दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स अगर बचपन में हुए हो या बचपन में कोई ट्रॉमा लगा हो या कोई एनी एपिसोड ऑफ अनहेल्दी एक्सपोजर ऑफ एनी रिक्रिएशनल ड्रग्स की हिस्ट्री है, or there is any history of intake of anabolic steroids. Body building के लिए there are a lot of males who want to take a lot of steroid, and this has an adverse effect on the sperm production. So apparently couple बहुत अच्छे से अपना sexual life कर पा रहा है, लेकिन अगर sperm production adequately नहीं होंगे, then it is very difficult for the couple to conceive. So here comes, so the history part takes a very important role. Now when you are evaluating the patient, you also ask about the surgical history, मतलब सर्जरी हुई हो कोई उनके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, तो then the sperm obstruction भी हो सकता है, there can be difficulty in managing a sexual life. Other than that, we also discuss with the patient whether they have any medical history of diabetes. Diabetes has seen that it also has a effect on the sperm production, decreased sperm production कर सकता है, abnormal sperm morphology हो सकती है,
retrograde ejaculation हो सकता है. Apart from this, we also have to take any history कि कोई cancer का incidence तो नहीं है male partner में, because this will also affect the production of sperms and a life between both the couple. Apart from this, the general build-up of the male patient. क्योंकि अभी मैडम ने डिस्कस किया अबाउट द वेट ऑफ द पेशेंट. जैसे फीमेल के लिए उसका वेट मैटर करता है इन द रिप्रोडक्टिव लाइफ. सिमिलरली एन ओबीज मेल पेशेंट may also have difficulty in going through the process of sexual life and also in the sperm production. So जब हम एक पेशेंट का ओवरऑल एक इवैल्यूएशन कर लेते हैं in terms of history, personal history, surgical history, and also demarcate कर लेते हैं कि where could the cause be. Since there is a testis, उसका एक प्री टेस्टिकुलर कॉज हो सकता है, एक टेस्टिकुलर कॉज हो सकता है, पोस्ट टेस्टिकुलर कॉज हो सकता है. So investigations also has to be directed according to these kind of evaluation. Once our male partner has been evaluated, then we go to the female evaluation, which madam is going to enlighten us about. फीमेल में मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो तीन होते हैं मेन, फैलोपियन ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस, राइट. तो हमें बारी बारी से तीनों का इवैल्यूएशन करना है कि वो तीनों पार्ट फीमेल के ठीक हैं कि नहीं, और कहाँ कहाँ ऑब्स्टिकल आ सकता है जिसकी वजह से वैसे इनफर्टिलिटी हो सकती है. तो सबसे पहले जैसे ही पेशेंट हमारे पास आती है हम उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछते हैं कि आपकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री वेदर इट इज रेगुलर, इरेगुलर, और फॉर हाउ लॉन्ग इट इज देयर, इन बिटवीन कितना गैप होता है, whether it is 28 days cycle, 35 days cycles, sometimes it may be 90 days cycles even. तो इस तरह से पूरा उसका menstrual cycle की पूरी हिस्ट्री लेते हैं. menstrual cycle की हिस्ट्री लेने के बाद फिर हम अपना इन्वेस्टिगेशन कराना शुरू करते हैं, जिसमें मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब पेशेंट हमारे पास आती है तो सबसे पहले जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वही हम लोग कराते हैं, जिसमें सबसे पहले हम एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिसमें वी कैन सी द साइज ऑफ द यूट्रस, शेप ऑफ द यूट्रस, और इवन यूट्रस के अंदर कोई फाइब्रॉइड नहीं है, एडिनोमा, एडिनोमायोमा, कुछ भी इस तरह की कोई एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, वो सब देखते हैं. देन वी ट्राई टू सी एडनेक्सा. एडनेक्सा मतलब है कि ओवरीज एंड फैलोपियन का जहाँ जंक्शन होता है वहाँ कोई ट्यूमर तो नहीं है, या पीओडी मींस जो हमारा पाउच ऑफ डगलस होता है उसमें कोई पानी तो नहीं है, वो सब शो करता है कि इन्फेक्शन है. फैलोपियन ट्यूब्स अल्ट्रासाउंड से हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो एटलीस्ट हम यूट्रस और एडनेक्सा अल्ट्रासाउंड से देख लेते हैं. उसके बाद अगर ये अल्ट्रासाउंड वगैरह सब ठीक है, देन सेकंड चीज हम कराते हैं उसका फॉलिकुलर मॉनिटरिंग. तो स्टार्टिंग में तो हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग विदाउट गिविंग एनी ड्रग, मतलब ओवुलेशन इंडक्शन नहीं करते हैं, जस्ट वी वांट टू सी कि इसके फॉलिकल्स बन रहे हैं ठीक से कि नहीं, उनमें रप्चर होके मैच्योर फॉलिकल एग निकलता है कि नहीं निकलता है, उसको देखने के लिए हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराते हैं. इसमें हम डे 1 पे पहले एक अपना बेसिक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिसमें भी हम ये देखते हैं कि ओवरीज में जो स्टार्टिंग में फॉलिकल्स होते हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं, उनको एंट्रल फॉलिकल्स बोलते हैं, तो वो हम देखते हैं 10 से 12 एंट्रल फॉलिकल्स होने चाहिए. अगर वो ठीक ठाक है और कोई सिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर हम 9th डे से उसकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराना शुरू कर देते हैं. तो डे 9 पे कराते हैं, फिर डे एक दिन छोड़ के कराते हैं ताकि हम देख सकें कि कितना हमारा फॉलिकल का ग्रो हो रहा है. जब ये फॉलिकल की ग्रोथ अबाउट 18 टू 20 मिलीमीटर हो जाती है, उसके बाद हम नेचुरल कोर्स में हम कुछ नहीं देते हैं, कोई ट्रिगर नहीं देते हैं. वी वांट टू सी नेचुरली कि वेदर इसका नेचुरली रप्चर हो रहा है कि नहीं फॉलिकल, तो नेचुरली देखते हैं. तो जब 19-20 हो जाता है उसके एक दिन बाद फिर से हम देखते हैं कि फॉलिकल रप्चर हुआ है कि नहीं. रप्चर हो जाता है तो एक मैच्योर फॉलिकल निकल आता है, मैच्योर एग निकल आता है. अब दिस एग इज टू बी ट्रैक्ड बाय फैलोपियन ट्यूब्स. फैलोपियन ट्यूब में फिब्रिया होता है, उससे ट्रैक हो जाता है. ट्रैक होने के बाद ये फैलोपियन ट्यूब के बेड में एम्पुला में आ जाता है, और नीचे जब सेक्स होता है तो स्पर्म फ्रॉम द यूट्रस इट कम्स इनटू द एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब. वहाँ इनका फ्यूजन होता है, उसके बाद ये नीचे ट्रांसफर हो जाता है 2-3 दिन में यूट्रस में, जहाँ इसका बेड बनता है वहाँ ये प्रेगनेंसी हो जाती है. अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं. लेकिन अगर फॉलिकल नहीं बन रहा है और मैच्योर नहीं हो रहा है, उसमें मैच्योर एग रिलीज नहीं हो रहा है, देन उसमें फिर ट्रीटमेंट जो हम आगे बताएंगे, डॉक्टर मेघा बताएंगी, उसमें हम फिर ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं. तो ये इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने ओवरी देख लिया, हमने यूट्रस देख लिया. अब तीसरी चीज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम अल्ट्रासाउंड से नहीं देख पाते हैं, उसको फैलोपियन ट्यूब्स हैं, और हमें कंफर्म करना है कि फैलोपियन ट्यूब्स ही हमारी पेटेंट है कि नहीं है. तो पेटेंसी देखने के लिए हम टेस्ट करते हैं जिसको हम हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी कहते हैं.
हिस्टोसल्फिंगोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि हम नीचे से मतलब फ्रॉम थ्रू द वेजाइना सर्विक्स होल्ड करते हैं, उसमें एक कैनुला डालते हैं, उस कैनुला के थ्रू हम डाई डालते हैं and that dye goes into the fallopian tubes and it comes out the femoral end of the fallopian tube. अब अगर डाई आ रही, ये हम यूजुअली आई विल टेल यू कि हमें कब करना चाहिए, ये हमें करना चाहिए यूजुअली बिटवीन 7th और 10th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन में तो कोई नहीं करना चाहेगा, इन्फेक्शन होगा, रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए उस समय नहीं करते। लेकिन 10वें दिन के बाद भी नहीं करना चाहिए, सपोजिंग इफ शी इज प्रेग्नेंट तो वो उसका अबॉर्ट हो सकता है, इसलिए इसका टाइमिंग भी होता है। हिस्टोसल्फिंगोग्राफी वी शुड ऑलवेज डू बिटवीन 7 to 10 डे, राइट। अब हम इसमें डाई डाल देते हैं, डाई डालने के बाद एक एक्सरे लिया जाता है, उस एक्सरे में हम देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब्स पेटेंट है कि नहीं है। इवन वी कैन सी इनसाइड द यूट्रस आल्सो कि उसकी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है, कोई फिलिंग डिफेक्ट तो नहीं है, वो सब भी देख लेते हैं इसमें हिस्टोसल्फिंगोग्राफी में। सपोज कि हिस्टोसल्फिंगोग्राफी में अगर हमें लग रहा है कि उसके कॉर्नुआ क्या होता है, जहां फैलोपियन ट्यूब यूट्रस की इनर लाइनिंग से अटैच होती है, मींस एंडोमेट्रियम है अंदर वाली लाइनिंग, और फिर फैलोपियन ट्यूब जहां जो है उसका जो है फंडस है उसका, वहां से वो फैलोपियन ट्यूब निकलती है, उसको ऑस्टिया कहते हैं। तो समटाइम्स कॉर्नुअल एंड पे से ही बाहर नहीं जा रही है डाई, तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है, इसको हमें 100% नहीं मानना चाहिए कि इसकी फैलोपियन ट्यूब्स ओपन नहीं है। समटाइम्स इट मे हैपन बिकॉज ऑफ स्पाज्म, पेशेंट को हमने एनेस्थीसिया नहीं दिया, पेशेंट को पेन भी फील हो सकता है, तो पेन होता है तो समटाइम्स उसमें स्पैज्म हो सकता है, स्पैज्म होगा तो वो कॉर्नुआ से आगे नहीं जाती है, बट दिस इज वेरी रेयर, यूजुअली वी हम लोग जो करते हैं वो सक्सेसफुल हो ही जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसके लिए दूसरा टेस्ट करते हैं, उसमें हम पेशेंट को सोनोसल्फिंगोग्राफी करते हैं, जिसमें कि सलाइन डालते हैं नीचे से, और फिर हम उसको अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं कि वो फैलोपियन से, लेकिन वो सलाइन का कलर नहीं दिखता है, इसलिए उसके दूसरे तरीके होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। तो इस तरह से हम ये कर लेते हैं। इफ एट ऑल फैलोपियन ट्यूब्स हमें लगता है कि बिल्कुल क्लोज है, तो इन द एंड हम तीसरा टेस्ट करते हैं जिसको हम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं, हिस्टेरोस्कोपी, जिसमें हम नेकेड आई से यूट्रस का अपर पार्ट भी पूरा देख सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स को भी लैप्रोस्कोप डाल के देख सकते हैं, एडनेक्सा में कोई एडिशंस तो नहीं है, या फैलोपियन ट्यूब डायलेटेड तो नहीं है बहुत ज़्यादा, और या फिर फैलोपियन ट्यूब के नीचे जो पाउच ऑफ डगलस होता है उसमें कोई इन्फेक्शन वाला फ्लूइड तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम फिर लैप्रोस्कोप से डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करते हैं। इवन हम इसके साथ साथ हिस्ट्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, और हिस्ट्रोस्कोपी से हम ये देख लेते हैं पर क्रोमोपर्ट्यूबेशन कर सकते हैं, जिसमें कि हम नीचे से एक डाई डालते हैं, मेथिलीन ब्लू कहते हैं उसे, और फिर हम जो ऊपर से लैप्रोस्कोपी कर रहा है वो देख लेगा कि फैलोपियन ट्यूब से वो ब्लू कलर की डाई आ रही है, तो इसका मतलब वो पेटेंट है। तो ये बहुत लास्ट में करते हैं, जब सारी चीजें फेल हो जाती हैं, देन वी गो स्विच ओवर टू दिस प्रोसीजर। सो दीज आर द इन्वेस्टिगेशन। नाउ डॉक्टर मेगा विल टेल यू समथिंग अबाउट मेल investigation, मेल इन्वेस्टिगेशन। For this, अब तक हमने सिर्फ हिस्ट्री और टेकिंग पे इवैल्यूएट किया है पेशेंट को। नाउ कम्स द सेकंड, जहाँ पर हम पेशेंट को उसका मेल पैटर्न में सबसे इम्पोर्टेंट है सीमेन एनालिसिस। तो सीमेन एनालिसिस इज जस्ट नॉट द डायग्नोसिस नहीं पूरा बनाएगा, बट इट विल हेल्प यू टू इवैल्यूएट वेयर द कॉज ऑफ द इनफर्टिलिटी इफ एट ऑल इट इज द मेल पैटर्न लाई करता है। तो सीमेन एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, बिकॉज इसके ऊपर पूरा मैनेजमेंट आगे डिपेंड कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट है कि इसको कलेक्ट कैसे करना है और कितने दिन का एब्स्टिनेंस रखना है। एब्स्टिनेंस मतलब कि जो मेल पार्टनर है उसने इजैकुलेट नहीं किया हो, तो एब्स्टिनेंस हमको रखना है 3 डेज का। आफ्टर 3 डेज द couple, उसका husband is advised to come to a clinical setting. It should not be done a home collection, because जो semen ejaculate किया जाता है, it can have lot of variations अगर temperature change हो जाए। Collection to the clinic setting में, lab setting में आ जाता है। इसीलिए it is always advisable that you should do it in a clinical setting. And clinical setting में इसको after 3 days of abstinence from the last ejaculation इसको release किया जाता है, collect किया जाता है। Now there are lot of parameters जो हम देखते हैं semen analysis में, and इसकी standard guideline है set by the WHO. According to that guideline हर मेल का वो semen analysis compare किया जाता है। So first thing we have discussed about the abstinence, then comes about collection कहाँ पर होना चाहिए। Now after collecting, जब आप clinical setting में आते हैं तो they give you a sterile jar to collect the semen, and कितना collection हम minimum
मानते हैं गुड है, दैट इज 1.5 ml तो मिनिमम होना चाहिए. Once the the semen has been collected, it has to be processed immediately. Now, जब वो semen analysis जा रहा है for analysis, what are the factors that we want to see in that? So सबसे important और सबसे first जो आता है volume जितना दिया गया है वो कम है कि more than 1.5 ml है, तो everything that comes in the first reading. Second comes about the count. तो sperm पर ejaculate भी होता है, that is per ml, और total जो आप जो मेल ने रिलीज किया है उसका total concentration भी आता है. So that has to be measured and it is completely in line with the WHO guidelines, which is 15 ml per concentration जो होता है. Now after that, according to जो आई है value, accordingly वो mild, moderate या severe rate किया जाता है. After the concentration, we go for the motility. Now the sperm has a forward motility. By that inherent property of the sperm, वो cervix से aspirated के uterus के अंदर जाता है and female के reproductive organ में enter करता है. So that motility has a very important role. Now motility जो होती है sperm की वो total motility भी होती है कि वो मोटाई है, move कर रहा है, and the other is progressive motility, मतलब move करता है वो उसको आगे जाना चाहिए, that is progressive motility. So these are the two parts that is seen during the semen analysis. Then comes the vitality, मतलब जो semen आपने release किया है उसमें जो sperms है उसमें कितने vital है, कितने lice sample है, about 4% तो हमें चाहिए. So that is the other parameter. Then comes the morphology. Now the semen में जो sperm है, now it has a lot of other things. उसमें से हम sperm का morphology देख रहे हैं कि वो जो हमारा morphology का criteria है उसको वो fall कर रहा है actually. Whether उसका tail ठीक से बना है, whether head अच्छे से बना हुआ है, so that is the morphology. अगर उसमें कोई problem रहती है तो उसका अलग treatment रहता है. So and then it also means कि कहाँ पर pathology, क्या वो release करते समय उनके ejaculation process में difficulty या upper ऊपर और testicular या mid testicular level पे problem है. So that is about the morphology. And उसमें और एक पैरामीटर देखा जाता है ल्यूकोसाइट. ल्यूकोसाइट का नथिंग बट WBC काउंट, कि मतलब कोई पैरामीटर ऑफ इन्फेक्शन को भी स्क्रीन किया जाता है. तो विद दिस कंप्लीट रिपोर्ट आप आते हो अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के पास, व्हिच इज कॉल्ड द सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट. एंड इसके बाद फर्दर मैनेजमेंट विल डिपेंड कि अगर टोटली स्पर्म्स एब्सेंट है तो उसको अजिस्पर्मिया बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट प्लान अलग होता है. अगर कम है उसको ऑलिगो बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट प्लान अलग है. अगर एस्थिनोस्पर्मिया जहाँ पर मोर्फोलॉजी कम डिस्टॉर्टेड है तो उसका ट्रीटमेंट प्लान अलग है. एंड अकॉर्डिंगली उनका इन्वेस्टिगेशंस भी अलग होता है. Now this is about the semen analysis and we always encourage the couple to go first line of treatment. अगर हम evaluate कर रहे हैं तो we have to see the semen analysis. Apart from that, जब हमने semen analysis करे, then we want to identify the cause. As I have told earlier, कि pre-testicular, post-testicular cause होते हैं. वहाँ पर हम अगर कोई hormonal changes जहाँ पर सोच रहे हैं कि मेल पार्टनर को भी हो सकते हैं, जैसे फीमेल में hormonal analysis किया जाता है, वैसे मेल में भी कुछ hormonal analysis किए जाते हैं, because the sperm production is just not limited to the function of the testis and ejaculation. It comes from the upper levels. मतलब hypothalamus हमारे brain level से कुछ hormones release होते हैं जिसके influence में ये sperm production होता है. So हमको उनका analysis जैसे female में किया जाता है वैसे male में भी किया जाता है, like the FSH levels, the LH levels, the prolactin levels. इनका assessment करने के बाद when we know that these are all the good and testosterone of course, इनका देखने के बाद and then we come to a conclusion कि what the treatment plan has to be. If at all we are concerned that patient का there is some anatomical disorder, यहाँ पर evaluation of his testis is required. So फिर we refer the patient to the andrologist or the urologist who will do a complete examination of the male partner and then decided course of treatment. ये हो गया about the hormone analysis. And we are also screening the patient for any STIs, जैसे gonorrhea, syphilis. So we have to screen the patient for all these abnormalities, these diseases as well, and also in chronic infections like hepatitis B, hepatitis C, HIV, because फिर इनका treatment plan थोड़ा सा change हो जाता है when a couple is trying to conceive. So that is about the main partners. And here we also want to just because ये सारे organic causes जो हम identify कर रहे हैं, now there is also a bigger picture जहाँ पर the stresses in life probably has increased now, and because of which there is not a healthy sexual life between the male and the female, and that is resulting in a decreased libido, in result decreased chances of pregnancy.
So वो chronic stress जो है that has to be identified in the couple and that has to be treated according to the whatever the stresses are that has to be treated, which may require some counseling, which may require the right referral, and then we can then we can come to a conclusion कि कैसे इस couple को help किया जाए to conceive a healthy baby. So this is about the investigations in the male partner. In a bigger picture, there are a lot of other small nitbits there which will be more easily clear when the couple approaches the treating doctor. From here, then we go to the female investigation. What are the investigations that are required in the female partner? Which I am going to elaborate from now. In female, I have already told that ultrasound, then ovulation study, then self-immunotherapy, and blood tests we usually do thyroid. If there is any hypothyroidism or what, serum prolactin, that is the pituitary hormone. कभी कभी जब पिट्यूटरी हार्मोन ज्यादा होता है तब भी फीमेल को इनफर्टिलिटी होती है। एंड इसके अलावा हमें डायबिटीज देखनी है, ब्लड कोई क्रॉनिक और कोई डिसीज है क्या, वो सब एलोबरेट निकालनी है। इसमें भी फीमेल पार्टनर में भी हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती हैं, उसके लिए हमें सारे वायरल मार्कर्स कराने होते हैं, लाइक HIV, जैसे कि डॉक्टर मेघा ने भी बताया, जो मेल में करते हैं वही सारे टेस्ट फीमेल में भी करते हैं। तो ये सारे टेस्ट हमें करने होते हैं, जो शायद मैंने बहुत डिटेल में भी बताया क्या क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब मैं बताऊंगी कि अगर जैसा डॉक्टर मेघा ने मेल के बारे में बहुत ही अच्छे से बता दिया हर चीज, अब अगर मेल में कोई प्रॉब्लम है और तो उसको ट्रीट करना ही होता है, जैसा बताया डॉक्टर साहब ने कि हम फिर उसको यूरोलॉजिस्ट या एंडोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं। अगर फीमेल में कुछ प्रॉब्लम है, लाइक कि उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना होता है, लाइक अगर उसको ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो हमें फिर ओवुलेशन इंडक्शन देना होता है उसको डिटेल में, तो फिर यू हैव टू गो टू योर ट्रीटिंग डॉक्टर, वही आपको ओवुलेशन इंडक्शन देगा। उसके बाद में आपको फॉलिकुलोमेट्री कराएंगे, फिर जब फॉलिकल आपका एक पर्टिकुलर साइज पे पहुंच जाता है उसको हम ट्रिगर कराते हैं उसको रप्चर कराने के लिए, देन उसके बाद में उसको प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर इन सब के बावजूद भी, और भी मैंने बताया था कि अगर अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम है, कोई फाइब्रॉइड वगैरह है तो उसको सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू ट्रीट मेडिकली फर्स्ट। अगर उसको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं वो मेडिकली ठीक नहीं हो सकती है तो वी कैन ट्रीट बाय सर्जरी लाइक लेप्रोस्कोपी और थ्रू स्टेरोस्कोपी। तो ये सब हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब जैसा डॉक्टर मेघा ने बहुत ही अच्छी तरह बताया कि फीमेल पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसमें स्पर्म्स वगैरह ठीक नहीं है, हमने अपना सारा ट्राई कर लिया, वी आर ट्राइंग फॉर 3 to 6 साइकिल्स नॉर्मली हमने ट्राई किया, हमने ओवुलेशन इंडक्शन भी दे दिया, फिर भी पेशेंट को कंसीव नहीं हो रहा है, तो अगर उसके देन वी मे गो टू फर्दर ट्रीटमेंट दैट इज कॉल्ड IUI। IUI इज आल्सो अ वेरी सिंपल ट्रीटमेंट। इसमें ओपीडी प्रोसीजर होता है। IUI का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें कि हम सीमेन लेके डायरेक्ट फीमेल के यूट्रस में डाल देते हैं। तो इसमें अगर पेशेंट को वैसे भी सब कुछ ठीक है, फिर भी अगर कंसीव नहीं कर रही है, तब भी हम वी में गो टू फॉर दिस IUI। या फिर जैसा डॉक्टर मेघा ने बताया कि मेल में कई सारे फैक्टर्स होते हैं, अगर उसका सीमेन में स्पर्म काउंट ठीक है, फिर भी अगर उसकी मॉर्फोलॉजी सही नहीं है, उसकी प्रोग्रेशन सही नहीं है, तो उन सब के लिए भी हम IUI करते हैं। IUI में हम क्या करते हैं कि मेल का सीमन ले लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद स्पर्म वॉश करते हैं, उसके बाद एक क्वालिटी स्पर्म्स ले लेते हैं, एक ट्यूब एक सिरिंज में ले लेते हैं, उसके बाद उसको थ्रू अ वेरी थिन पाइप हम लोग डायरेक्टली इंसर्ट देम इनटू द uterus up to the fundus of the uterus। तो उससे क्या होता है, the distance between the vagina to the fundus, जो उनको प्रोग्रेस करना है स्पर्म्स को, वो सब बच जाती है, और डायरेक्टली फंडस में डालने से वो इजीली फेलोपियन ट्यूब्स में चले जाते हैं और वहाँ प्रेगनेंसी हो सकती है। तो IUI से 15 to 18% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं प्रेगनेंसी होने के। तो IUI में हम 3 से 6 बार हमें करना चाहिए कंटिन्यू, लेकिन जब 6 बार के बाद भी अगर हम सक्सेसफुल नहीं है, then we should send the patient to ART और IVF center। IVF में आपको शायद पता ही होगा कि उसमें तो इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, उसमें पहले जो IVF वाले होते हैं वो एग की क्वालिटी एंड नंबर बढ़ाने के लिए मल्टीपल इंजेक्शंस एंड मेडिसिन देते हैं। उसके बाद वो एग जो जब एग बन जाता है और मैच्योर एग बन जाता है अंदर फॉलिकल से, तो कई 3-4 एग उसमें से रिट्रीव करते हैं, वो रिट्रीव करने के बाद then we fuse the eggs in the sperm with the sperms in a dish, then
भी जो एम्ब्रियो बन जाता है उसको वी कैन ट्रांसफर द एम्ब्रियो इन द यूट्रस, और जब मल्टीपल एम्ब्रियो बन जाते हैं तो हम एम्ब्रियो को फ्रीज भी कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर। तो इस तरह से आईवीएफ पे जाना पड़ता है। इन द एंड आई विल लाइक टू से दैट ये हमें अच्छी तरह, हम दोनों के डिस्कशन से आज के सेशन में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इनफर्टिलिटी इज नॉट ओनली लेडीज प्रॉब्लम, जो कि आज से बहुत साल पहले सोचा करते थे जब भी कोई कपल इनफर्टाइल है दे शुड ऑलवेज कम टू द डॉक्टर टुगेदर सो वी कैन इवैल्यूएट बोथ मेल एंड फीमेल। दूसरी चीज डॉक्टर मेघा ने जैसे भी बताया, स्ट्रेस, स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवेयर, स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्ट्रेस रखेंगे तो इनफर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा होंगे। सो दिस इज अवर टेक होम मैसेज दैट यू शुड लिव अ हेल्दी लाइफ, एंड जो भी आपकी डाइट है उसको कंट्रोल करें और अपने लाइफ को बिल्कुल स्टाइल जो आपका लाइफ का जो आजकल चल रहा है स्ट्रेसफुल लाइफ, कंटिन्यूअस सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, नॉट वॉकिंग, नॉट डूइंग एनी एक्टिविटीज, उस सबको चेंज करें। एंड यू हैव टू बी टुगेदर happily, you have to live together happily, and whenever you are not able to conceive, don't hesitate to go to your doctor for pregnancy conception. Thank you so much. Thank you so much. Do we have some questions, Ravi? First, ma'am, does weightlifting affect male infertility? Yes, unmonitored weightlifting definitely affects not the male fertility, but it may have a stress effect on your testicles. And gym sperm count, yes, if a person is healthy lifestyle और weight control में रखे, तो lot of factors जो diseases develop कर सकते हैं उसको आप control में रखो, it does have a good sperm count भी better करता है, and also your ability to have a good healthy sexual life with your partner भी improve होता है। But ये जब हम gym करते हैं, which is that is why I made a lot of stress because the current scenario is the use of lot of anabolic steroids जो हम gym में tend to use करने की tendency रख सकते हैं, that has to be discouraged because जो आप ले रहे हैं steroids ले रहे हैं या जो भी energy enhancing drugs ले रहे हैं, that has an adverse effect on the sperm production because उसमें अगर testosterone है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो inhibiting कर देगा आपका sperm production को, तो no matter आप एक healthy sexual activity रख सकते हैं, but once you go and get a semen analysis, maybe the sperm count is very good. So how does age affect fertility in both men and women? I have already told you that as the age advances, उसमें जो एग की क्वालिटी होती है, एक तो उसका रिजल्ट कम होने लगता है, ओवेरियन रिजल्ट कम होने लगता है। मैंने बताया कि हर मेंस्ट्रुएशन में मेनी नंबर्स ऑफ एग जो है वेस्ट हो जाते हैं और उसका रिजल्ट कम होने लगता है, एग की क्वालिटी भी खराब होने लगती है। इसी तरह मेल में भी स्पर्म की क्वालिटी भी खराब होने लगती है, इसलिए एज फैक्टर इस तरह से आपके hamper करता है fertility को। How can couple protectively assess and address their fertility concern? So most पहले तो आपका age factor जैसे मैडम ने डिस्कस किया repeatedly, it is biological female जैसा हमने reasoning दिया है मैडम ने कि जैसे जैसे age progress करेगी आपके chances of the egg production, healthy egg production decrease करता जाएगा, क्योंकि हमसे एक reservoir के साथ ही एक female आ रही है लाइफ में। So with every passing period, your egg reserves are going to decrease. And but for the male, it is not the same thing. It is उसका जो sperm production है, it is a 90-day cycle. तो sperm production almost ठीक ही रहता है, age इतना ज़्यादा नहीं affect करता है, that जितना वो एक female को definitely affect करता है। But once you as a couple has decided that they want to plan a pregnancy, so they have to go. If you have any inhibitions in understanding कि क्या आपका right time of conception रहेगा, when is the right time to try to conceive, then you can approach your gynecologist and discuss with them, because sometimes we get patients only who come for counseling because that is proactive. That आप आ रहे हो अपने consultant के पास पूछने के लिए what is the right time, what are the things that I should take care of. Suppose a patient is on the higher side of the weight, so we advise them to do not immediately say कि आप ये टेस्ट करा लो या ये चीजें मेडिसिन ले लो। First and foremost about infertility is counseling. Counseling is that probably we were not trying the right way, we were not trying at the right time of the cycle. So that discussion has to be with
your doctor who tells you कि अगर पीरियड्स 28 डेज का साइकिल है तो हम 10th डे पे बोलते हैं ट्राई करने के लिए ऑल्टरनेट डे, बिकॉज जो स्पर्म का लाइफ है वो तो 5 to 7 डेज है, लेकिन जो एग का स्पैन है वो सिर्फ 24 आवर्स का है। तो इसलिए टाइम इंटरकोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर एक प्रोएक्टिवली कपल चाह रहा है। एंड देन इफ सपोज आपके ट्रीटिंग डॉक्टर ने कोई डिजीज आपकी आइडेंटिफाई कर दी, कोई कॉज आइडेंटिफाई कर रहे हैं इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन, then you need to be investigated and treated accordingly and again counseling. So counseling has to be a very major role when a couple is trying to conceive. How does stress and mental health affect fertility outcome? ये हम बार बार बोल रहे हैं कि will mental health and stress will definitely affect the fertility, because अगर आप mentally stressed रहेंगे तो आपके जो हार्मोन्स बनते हैं जो ब्रेन में पिट्यूटरी थैलेमस सब में वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड दोज हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलिटी, राइट। आपके ओवुलेशन के लिए, आपके अंडे बनाने के लिए, आपके अदर जो भी पार्ट है उनको डेवलप करने के लिए, हर चीज के लिए आपके जो हार्मोन्स बन रहे हैं उनका जरूरी होता है। और मेल और फीमेल दोनों ही अगर स्ट्रेस में होंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह ये सब भी टाइमली नहीं कर पाएंगे। जैसे ये भी डॉक्टर मेघा ने कहा कि अगर हम लोग टाइमली वो सब नहीं करेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू कंसीव, क्योंकि उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है। हम लोग बार बार आपको बता रहे हैं, इसलिए मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू बी अ fertility for fertility. And what are the signs and symptoms of infertility? Signs and symptoms we have discussed elaborately कि क्या signs and symptoms है infertility के, मेल का अलग फीमेल का अलग। of course females में हम we start in, see for male if they are having a good libido, अच्छा activity रख पा रहे हैं, so we do go and do the semen analysis only, but for the female the cycles, जो cycles है menstrual cycle है वो बहुत अच्छा indicative है whether उसको कोई problem है कि नहीं है। अगर आपके cycles regular है, वो एक 21 to 35 days का पैरामीटर फॉलो कर रहे हैं, फ्लो सही है, then mostly those are the early, अगर वहाँ पर कोई disparity आ रही है या कोई dysmenorrhea, severe pain हो रहा है during menses, there is some history of infection, there could be a white discharge, a low back pain, a lower abdominal back pain, then those are the cases where we want to investigate. Even male, they are having any erectile problem. Exactly. Yeah, the erectile dysfunctions, with course of history taking, with course of counseling, धीरे-धीरे a couple tries to tell us what it is, where the problem could lie, and then maybe a counseling session can only solve the problem. Is infertility a male or female problem? ये तो हम लोगों ने कई बार बोल दिया कि it is a combined problem. 50-50% दोनों का होता है, 40% male, 40% female, and 20% मिला के दोनों का, both male और female. So ये तो हो ही गया कि male और female दोनों की प्रॉब्लम है, इसलिए always a couple should come to the doctor, not only female or not only male, right? Why egg matters for men and why age matters? तो हमने बोल दिया, age we have already told you, उसकी क्वालिटी गिर जाती है, वो की स्पर्म दोनों की क्वालिटी धीरे-धीरे एज के साथ-साथ कम होती जाती है। There is one question: how can I test my fertility at home? So for male and female it will hold difference. अगर एक female के लिए देखें तो उसका history का हमने menstrual history, period history को इतना डिटेल में describe किया है, that is one indicator. The other, if you want to know कि आप ovulate कर रहे हो कि नहीं, तो ovulation kits are available in the market, but you have to understand there can be false positive and false negative, but ovulation kits available होते हैं जो आपको वो मार्क करते हैं जब बॉडी में, जब बिफोर ओव्यूलेशन एक LH सर्ज होता है, तो वो ओव्यूलेशन की वो LH सर्ज को रिकॉर्ड कर रहा है, तो जब वो पॉजिटिव दिखाने लगता है दैट इज द टाइम यू हैव टू हैव इंटरकोर्स विद योर पार्टनर, and that will increase the chances of fertility, conception, sorry. So that is one way to measure, to know whether you can conceive or not, but ये सब just because अगर किट में नेगेटिव आ रहा है या किट में पॉजिटिव आ रहा है, it will not always hold. And that also because कभी-कभी आपकी साइकिल बहुत लंबी है, तो you can never know. Actually हमें जो हमारा पीरियड नेक्स्ट जो पीरियड आता है उससे 14 डेज पहले समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमारा मेंस्ट्रुएशन What are the time that you have to do these tests if at all?
and what is the time you have to be careful or try for the conception. For males, similarly, as we have discussed elaborately, for males, if they are having any sexual problem in terms of erectile dysfunction, yeah, there is some stress-related factors, or there is loss of libido because of the stress, or when they are the sperm that are released are not adequate, or maybe if there is any such problem, you have to approach your doctor and do the needful, which would start from semen analysis and of course the examination of the patient. And once you know that things are on the right track, a counseling session with your doctor will also help you to solve the problems. Weightlifting will other series of it. What is the role of genetics in infertility? जेनेटिक्स इन इनफर्टिलिटी का रोल ये है कि देर आर सर्टेन आइडेंटिफाइड कॉजेज जो बहुत रेयर होते हैं बट दे डू एग्जिस्ट, जहाँ पर हम जब हम पेशेंट को देखते हैं देर आर सर्टेन डिजीजेस सिंड्रोम्स इसके अंदर देयर कैन बी सेक्सुअल देयर कैन बी इनफर्टिलिटी लाइक इन फीमेल अगर हम देख रहे हैं देयर कैन बी टर्नर सिंड्रोम, अगर मोजाइक नहीं है टू टर्नर सिंड्रोम है दे माइट गेट अफेक्टेड विद इनफर्टिलिटी. Now there are certain genetic disorders like जहाँ पर the vagina is not well developed. Those are the MRKH होता है जहाँ पर again it is a problem जहाँ पर husband and wife are not able to maintain a healthy sexual activity. For males could be Klinefelter syndrome. There can be chromosome Y deletions. तो वहाँ पर हम पहले पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या उससे ये प्रॉब्लम्स हो सकती है in terms of their appearance, in terms of their history. And there is something called as cystic fibrosis और वो और भी सारी प्रॉब्लम्स के साथ आता है लाइक लंग डिफिकल्टी है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, रिकरेंट इन्फेक्शंस है. सो इन अ पेशेंट अगर होलसम में देखते हैं नॉट वन फैक्टर जो हमें डिसाइड करेगा हाँ जेनेटिक इशू है, बट दीज आर द बेसिक जेनेटिक इश्यूज दैट कुड बी अ प्रॉब्लम. एंड आल्सो इन सबको आइडेंटिफाई करके देन देयर कैन बी अ डिस्कशन ऑन हाउ इट हैज टू बी. What role do hormonal imbalance play in infertility? Hormonal imbalance तो definitely it is very important. अगर hormonal imbalance होगा तो फीमेल में ovulation नहीं होगा क्योंकि पूरा उसमें hormones के थ्रू ही होता है. और जो फर्स्ट पार्ट ऑफ menstruation होता है उसमें estrogen हार्मोन ज़्यादा होता है, सेकंड पार्ट में प्रोजेस्टेरोन निकलता है, उसके बीच में एक एलेक्ट सर्ज होता है जो पूरा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी वहाँ से पूरा पूरा कवर होता है. तो जब भी हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो फीमेल में भी ओवुलेशन नहीं हो पाएगा और फर्टिलिटी नहीं होगी. इसी तरह मेल में भी अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो क्वालिटी ऑफ स्पर्म अच्छी नहीं होगी, कभी एंजियोस्पर्मिया भी हो सकता है, एनी टाइप जो प्रोग्रेसिव स्पर्म होते हैं वो कम होंगे, मतलब क्वालिटी ऑफ द स्पर्म नहीं अच्छी होगी उसमें भी. तो हार्मोनल इम्बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो तो नहीं होना चाहिए, अगर वो है तो उसे ट्रीट करना पड़ेगा तभी एक अच्छी प्रेगनेंसी हो पाएगी. We've answered all the questions. Yeah, we have already explained all your answers. Thank you so much. Thank you so much.